Assalamu alaikum, good afternoon, and welcome to another Apprise Systems webinar that is on IT audits. We have a very special and very close to our heart guest today, Mr. Muhammad Umair Naveed Khawaja. He has more than 5 years of experience in IT audits, and in total, he has more than 8 years of experience in professional career related to IT audits. So, थोड़ा सा मैं इस वेबिनार का बताऊं कि इसमें क्या हम देख रहे होंगे. बेसिकली उमेर विल एक्सप्लेन यू क्यों हम आईटी ऑडिट्स करते हैं, आईटी ऑडिट्स है क्या चीज, क्या इसके चैलेंजेस आते हैं, क्या रोड मैप्स हैं, क्या ब्लॉकर्स आते हैं. सो वेदर यू आर अ प्रोफेशनल, an individual, student, or business owner, this webinar is perfect for you. Please listen and hang tight. You will find this very useful and informative. So let's get started. Without further ado, I would like to call Mr. Umair Khawaja to take the stage and begin his presentation. Okay, fine. Okay, assalamu alaikum everyone. As Ali mentioned my name already, my name is Muhammad Umair Naveed, and I'm currently working in one of the leading banks in Pakistan. I have more than experience in IT audit of more than 5 years and overall experience in 8 years. So, so today the topic of my presentation basically is the role, the importance of IT audit in this constructive involving threat landscape. This is my profile. Well, So, sorry to cut you down. Please, can you move to presentation mode? So sorry, the presentation will be more visible to our audience. is it fine now? Yes, thank you. Thank you. Please Okay, continue. sure. So first of all, what is IT audit? IT audit, as we all know, basically, due to the widespread of the technologies and the organization facing increasing security threats day by day, हम लोग रोज के रोज सुन भी रहे हैं कि रिगार्डिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हैक हो गई है, किसी का डाटा ब्रीच हो गया है. So we are constantly listening these news. So this is where the IT audit comes, because the organizations are now trying to safeguard their infrastructure from basically protecting their data to being misused or to being hacked. So IT audit is basically the process of evaluating an organization's information system to ensure that they are secure, reliable, and compliant with the regulatory requirements as well. Because in financial institutions, or you can say in any organization, the data is the most critical part of the you can say component. Because what we hear that what we usually know that if there's a financial loss, it is a big deal, but no. Reputation loss is a big deal. And what causes the reputation loss? When a customer data or customer, you can say, privacy got leaked, breached. So this is where audit comes, and it ensures that all the controls which IT has implemented are secure enough, secure enough and strengthened enough to mitigate those risks, and the hackers cannot breach those risks. So the objective of an IT audit is to identify and assess the vulnerabilities of the IT environment and to provide the recommendations. We not only provide the risk कि आपने ये control, for example, आपने ये gap identify, आपका ये gap है तो इसके through ये risk हो सकता है, बल्कि recommendations भी audit देता है कि आपको इस risk को खत्म करने के लिए क्या-क्या चीजें कर सकते हैं हम. So इसके अंदर basically the IT reviewing policies, जिसके अंदर बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स होगा. फॉर इंस्टेंस कि आपके जो कोई अगर वेंडर है तो आपको उसका SLA साइंड है, आपको कोई इंटरनल लेवल एग्रीमेंट है विद ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो IT और बिजनेस के दरमियान है कि फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई सर्विसेज डाउन होती है तो कब कितने टाइम में अप दे देंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कितने टाइम तक अप हो जाएंगी. इसके अलावा जो प्रोसीजर कंट्रोल्स हो गए कि फॉर इंस्टेंस प्रोसेस कंट्रोल्स कि जो BRD जो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट था या कोई FSD फंक्शनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन कि जिसके अंदर डिफाइन होता है कि जी फॉर इंस्टेंस कि आप बताते हैं कि ये बिजनेस बताते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है और IT उसको बताता है कि ये एवेल्यूएट करता है. तो वही ऑडिटर वही इंश्योर करता है कि जो रिक्वायरमेंट थी और जो बन के आई ये चीज डेवलपमेंट जो बन के आई है वो प्रॉपर्ली उसी प्रोसेस के थ्रू वही चीज जो मांगी थी वही आ भी रही है. इनकेस ऐसा तो नहीं है कि फॉर इंस्टेंस कि आपने BRD में कुछ और डिफाइन किया था, FSG कुछ और बन गई, और उसके लिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी ये बनता है फॉर इंस्टेंस कि एक चेंज के थ्रू आपने कोई दूसरी चेंज करने का आपने उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट एनालिसिस ना किया हो
तो उस इम्पैक्ट के थ्रू आप दूसरी सर्विसेज आप दूसरी चीजों पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, दूसरी सर्विसेज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे सिस्टम रिलेटेड चेंज मैनेजमेंट, जिसके ना फॉर इंस्टेंस के आप बता रहे होते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि जो आपका डाटा है आइदर इन रेस्ट और आइदर इन ट्रांजिट, वो बेसिकली कितना सिक्योर है, वो उसके अंदर मास्किंग हुई हुई है नहीं हुई हुई, इंक्रिप्टेड है या नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल्स, कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंट्रोल्स एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो ऑथराइज एक्सेस थ्रू थ्रू ऑथराइज चैनल के थ्रू आ रहे हैं, ऑथराइज लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसको अनऑथराइज एक्सेस लोग भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो बैकअप एंड कॉन्सेस ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिकली है रिगार्डिंग वंस इट बीन क्रैश इज टोटली बीन ओवर, is it like that, or is it like that you are taking the backup on regular intervals, and although also testing it in case that if some incident happens, we can go back to the backup. Or disaster recovery is also the same part, that we are making sure that there is a there is a uh, there is a place where all the data is being secured in a replica manner. So this is the thing which is which we are being validating in our IT audit. So there are different types of IT audit. One is compliance audit. The compliance audit assesses whether the organization systems processes comply with the regulatory requirements such as the data laws, GDPR. You have heard about it, PCI DSS, for example, as well. This is the compliance audit, and then security audit. We basically covers the such as security parameters such as firewalls. We make ensure that the traffic which is being out, which is flowing on the network is through the legitimate channel, or it is being routed through the illegitimate channel. Or for example, we also validate that the IDPS, the traffic rules being which are being created are being working effectively. For instance, you can say that there is an ideal solution which we make sure that patterns abnormalities are being fully effective. For instance, if I give you an example, there is a rule being created that the users, the XYZ user have been given access to access ABC website, ABC part, but he has been accessed, he has given access, he tries to access or log in to the D part. So does it effective make the rules, and does it giving the alert that this bean has been trying to log in as an unauthorized attempt? Or you can say that one user is being given one user usually logins at 10 a.m. in the morning, but once he tried to log in at 10 p.m. Does it alerted does it given an alert that there's an unusual pattern being observed? So basically, we try to validate that the patterns, abnormalities, and the behaviors are being effectively being monitored and being triggered as well. So there are different types of IDPs in which, like for instance, network-based IDs and host-based IDs. In a network-based IDs, we basically try to, as I already mentioned, try to validate the patterns and abnormalities, and the host-based IDs is basically is stored on a particular laptop on a particular server, which is basically an individual perform activity is being recorded or being maintained. Then there comes a network audit. In the network audit, we basically evaluate the firewalls, routers, switches. We make sure that the ACL rules are being implemented and and all the users are being accessed through a proper channel. The routers, switches, and the firewalls are being upgraded on a timely manner, and all the functionalities which they are the core routers. Basically, we usually try to make sure that the core routers are basically all the data which is being routed through them is being secured enough, and no unauthorized access or data breaches or data leakage option is being tried to mitigate that. Then there comes the IT governance audit. In the IT governance audit, um, we try to evaluate the governance structure, policy, and procedure. This type of audit assesses whether the organization IT activities are aligned with the overall business objectives, whether IT risks are adequately managed or not. So this is the types of audit. Then there comes the benefits of IT audit. In the benefit of, I would say that IT audit basically plays a crucial role in identifying the vulnerabilities in an organization information system and provides the reasonable insurance and recommendations for the IT to improve their security parameters.
It helps in organization to ensure that they're implementing the best practices, they are compliant with the regulatory requirements, and their controls are secure enough to get being attacked or get being hacked. So as mentioned in the slide as well, that we basically enhance the cybersecurity posture as well. We improve the cybersecurity operations and make sure that the compliance and regulatory requirements are being compliant. And then we make sure that the privacy laws and all the you can say the best practice industries are being met through this. Further, there is a video which I will be playing. I'm going to play to ensure that to let you know that why this IT audit or security breaches happen. Can you hear the video? Can you see the video? Yes, but it is paused. Yes, working now. All companies protect their data. As a result, very few of them have had to deal with a security breach over the past 12 months. Oops, 73%. I guess we can never be too careful. The world is a busy place with people like you and I, generating vast quantities of sensitive data on a daily basis, receiving, transferring, sharing across the four corners of the globe. But who's protecting all of that sensitive data? Who can help eliminate the risks of security breaches? And what if it were you? Accompany a businessman during an assignment. Be his guardian angel. Help protect his data. Become foolproof on cybersecurity. So, as I said, as you seen in the video as well, that there are many breaches could happen if there was not security controls applicable. So then there is a basically IT auditors basically check what they validate if there's an attack comes in the network. Does there was firewall enabled? There was a DLP solution available in the platform. We usually check that there was antivirus software available. There was the patching being done on regular basis. The security specifications for the systems are being done properly. In the application, we usually ensure that the coding, secure coding and applications parameters are being considered while developing an application or any infrastructure. Basically, in the data layer, we basically ensure that as I already mentioned before, that the data which is in transit under the data which is in transit or in rest is being secured और is being encrypted और being masked. कोई ऐसा तो नहीं कि for instance कि आपका जो developer है basically वो इसी को आपने प्रोडक्शन एक्सेस भी दिया हुआ है और वो तमाम यूजर्स की इंफॉर्मेशन भी व्यू कर पा रहा है, तो ये भी एक ब्रीच है बेसिकली आपके लिए. एक जो डेवलपर है हालांकि उसका काम उसने खुद डेवलप किया है लेकिन उसको एक्सेस नहीं है कि वो तमाम यूजर्स को उसकी इंफॉर्मेशन भी व्यू कर सके. इसके अलावा फिर आपके जो मॉनिटरिंग इन केस तमाम लेयर्स को बाईपास करके भी कोई अगर इंसिडेंट अगर हो जाता है तो आपके पास कोई साइबर थ्रेट रिस्पांस टीम अवेलेबल है या कोई आपके पास कोई प्रोसेस है कि इंसिडेंट जब आपका अगर हो जाएगा तो आपने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और वो फिर उसके स्टेप्स को फिर ऑडिट जो बेसिकली वैलिडेट भी करता है कि वो स्टेप्स जो इंश्योर मतलब प्रॉपर इंश्योर करते हैं कि इन केस इन फ्यूचर वो इंसिडेंट वापस अगर ना हो सके. तो ये सब चीजें ऑडिट से. और सबसे बड़ी चीज जो इसके अंदर इन तमाम चीजों को बाईपास करने के बाद भी अगर वो है ह्यूमन अवेयरनेस. क्योंकि ऑडिट जितनी भी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर ले लेकिन जब तक ह्यूमन अवेयरनेस नहीं होगी, ह्यूमन फैक्टर, क्योंकि ह्यूमन अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तो तमाम कंट्रोल्स कहीं ना कहीं से आपकी गैप हो ही जाता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको कॉल्स आती हैं कि जी स्कैम कॉल्स जो आती हैं कि जी मुझे आपकी कोई बैंक की डिटेल्स चाहिए. अगर कोई ह्यूमन अवेयरनेस नहीं होगी तो वो आप अपने ओटीपी शेयर कर लेते हैं जिससे, तो वो एक बेसिकली आपका एक कहना चाहिए कि रिस्क बन सकता है. अच्छा जी, जो बेसिक वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिसके अंदर बेसिकली आप
चेक कर लेते हैं कि हम लोग जो वैलिडेट करते हैं कि मोस्टली वो वीक पासवर्ड्स, वीक ऑथेंटिकेशंस होती हैं, इनसिक्योर सिस्टम्स, सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं, इनसिक्योर नेटवर्क सर्विसेज होती हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो आप एनेबल करने जाते हैं जिसके ब्याह पे दूसरी सर्विस एनेबल होती है, जिसकी वजह से पे आपके जो इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरी सर्विसेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। और वो हैकर जो होता है बेसिकली वो यही ट्राई कर रहा था, वो हिट एंड ट्राई कर रहा होता है कि कोई सर्विसेज मुझे ऐसी इनेबल मिल जाए कि जो मुझे बाईपास कर दे आपके सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए। और इसके अलावा फिर आपके कुछ आउटडेटेड जो बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं वो बेसिकली जितनी इवॉल्व हो रही हैं साथ साथ आउटडेटेड भी होती जा रही हैं, और जितनी आउटडेटेड हो रही हैं उतनी ही उसमें वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल हैं। तो वो और वल्नरेबिलिटीज को और मतलब एक ग्राउंड दे रही है कि आप और उसको फिर कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर एंक्रिप्शन हो गई, वीक हार्ड कोडेड पासवर्ड्स हो गए, वीक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो गई, और नेटवर्क सर्विसेज कोई अनयूज पोर्ट यूज आपने यूज की हुई है, मतलब आपने कोई इतनी सारी फजूल की पोर्ट्स ओपन की हुई है जिसके थ्रू हैकर जो है बेसिकली आपके सिस्टम पर पेनिट्रेट कर सकता है। इनसिक्योर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो गई। अच्छा, इन सब के बाद जो आता है बेसिकली आपको फिजिकल लेयर भी आ जाता है। फिजिकल लेयर के अंदर बेसिकली आपकी प्रॉपर इंक्रिप्शंस है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि कहना चाहिए कि एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपने पैरामीटर्स, आपने नेम की फील्ड है, और उसके अंदर अगर सीएनआईसी भी इनपुट हो रहा है, सीएनसी के नंबर्स अगर इनपुट हो रहे हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो उसका मतलब उसकी कन्फिगरेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई सही। तो ये है चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली एक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर लेते हैं। मैं चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन सबके लिए छोड़ता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब उसका एक आंसर भी दें कि व्हाई डू मोस्ट ब्रीचेस हैपन। मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सब मुझे उसका आंसर दें। व्हाई डू डाटा ब्रीचेस। आप अपना टाइम लें और उस पर मुझे जरा जवाब दें कि क्या, ताकि हम एक ओपिनियन, ताकि ये भी तो होना कि आप, मैं ही बोलता हूँ, आप लोग भी आपके थ्रू भी चलें। ओके। Okay, so audience, Umair have asked the question in the chat box. You can navigate to chat box. The question is, why do data breaches happens? So answer आने लग पड़े हैं हमारे पास. Someone said DOS, some said due to the lack of security measures. Then again, lackness of security awareness, stall or weak credentials, misconfigurations from Hasnain, Hamza Arshad, code vulnerability, Uzaifa Shahid, code vulnerability. Same हमारे पास भी आंसर्स आ रहे हैं. Ali Haider, unprotected data. So, सो Umair, जी बिल्कुल। काफी लोगों ने इसका मतलब करीब करीब सही जवाब दिया कि मोस्टली जो आपके, अगर एक सर्वे भी हुआ था जिसके अंदर 42% जो है मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस की आती हैं, और वो क्यों होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन एरर्स हो गए, वीक डिफॉल्ट्स हो गए, मतलब जेनिक अकाउंट्स आपने रखे हुए हो, जो वेंडर बेस्ड अकाउंट्स है वही है कि वही रखे हुए हो, या कोई एप्लीकेशन बेस्ड अकाउंट्स हो वही कि वही इनेबल्ड हो, इजी पासवर्ड्स हो, मतलब पासवर्ड्स इजी, जैसे हमारे पास होते हैं वेंडर बेस्ड एप्लीकेशंस के 4x1, या एडमिन का पासवर्ड एडमिन रख दिया। तो ये 42% होते हैं कि जिसके थ्रू ब्रीचेस हैपन होते हैं, और ये हमें पता भी है कि होते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि कहना चाहिए कि ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज कह लें, या ड्यू टू द मिसकंसेप्शन कह लें, कि 42% इस अभी भी इस वजह से ब्रीचेस हैपन होते हैं। 6% आपके जो है बेसिकली वल्नरेबल कोड की वजह से, जिसके अंदर बग्स हो गए, इनपुट वैलिडेशंस हो गई, जो एक भाई ने भी कहा था कि कोई कोड वल्नरेबिलिटीज के अंदर आ रहा है, वल्नरेबल कोड हुआ जिसके अंदर। फिर एंड यूजर एरर, जिसके अंदर आपने कोई इंस्टॉलिंग सस्पेक्ट एप्लीकेशंस की हुई हो जो आपके मेलवेयर के थ्रू आपका जो कोड डिटेक्ट करके ला रही हो, क्लिकिंग मेलिशियस लिंक्स कर रही हो। 6% आपके कोई फिशिंग ईमेल्स हो, वाटरिंग होल अटैक्स हो, और 15% तो ऐसे हैं कि जो अभी तक अनडिटरमाइंड है कि हो क्यों रहे हैं वो ब्रीचेस, वो अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। so it means अब जो ऑडियंस ने हमारे आंसर दिया है वो जी वेल बिल्कुल, अवेयर, मतलब बड़े फोकस्ड है. बिल्कुल। यस, हाँ, बहुत वेल रेलिवेंट अवेयर है आंसर उसके है. अंदर, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं आपको हमें सबको पता है कि सब चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्रीच हुआ है, और आप देखिएगा कैसे ब्रीच हुआ है। और वो खुद बताएंगे कि हमारे पासवर्ड भी क्या, हमने क्या रखे हुए थे, हम लोगों ने अपने मतलब आप अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी एक्सेस कर सकते थे उसके अंदर, कोई भी आके एक्सटर्नल डिवाइस आपके की लॉगर्स लगा लिए वो एक्सेस कर रहे थे, पासवर्ड बता रहे थे, और जिसकी वजह से उनका पूरा नेटवर्क डाउन हुआ। तो ये वीडियो आप देखें, ये जो हमने पूरी बेस सवाल पूछा, आप तमाम के आंसर इसमें कवर हो रहे होंगे, देखिएगा आप। Hey, you got a minute? I got the data on this attack. How bad?
It's bad. I mean, these guys were pros. Well, how they get in? I mean, using pretty much every trick in the book. Phishing emails for starters. You just don't give up their passwords on the first try. And Clark and Christina were next. They got about 60% of our staff, basically. I mean, to be fair, the phishing site looked extremely legit. This is not good. Yeah, well, that's not even the half. Looks like they scouted the building last Tuesday. They were war driving, looking for any wireless access points. And then they pretty much just went with it. They cloned an ID badge, they somehow got a key code, and then from that point it was easy. They stuck a rogue wireless point in a meeting. And then they broke into the server closet and installed a sniffer on the network. They even planted key loggers on people's PCs. It's a device that you can record anything an employee types in. They got logins, passwords. For Pete's sake. They also bugged 3 meeting rooms, and there's one in here. All right, so what's the damage? They got 2,000 customer accounts. Okay, all of our board minutes, the HR server, product roadmaps. They even got into our social media accounts. The password was password. Shoot me. Yeah, well, like I said, these guys were pros. Well, thank God they were working for us. So जैसे कि So basically the password was password, right? Yeah, बिल्कुल exactly as I mentioned earlier कि जेनिक अकाउंट्स हो गए, आपके की लॉगर्स आपने एप्लीकेबल की हुई थी कि कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाएगा तो आप वो एक्सेस कर पाएगा। इसके अलावा पासवर्ड्स आपके जेनिक यूजर्स मतलब पासवर्ड भी थे, नॉर्मल वेंडर बेस्ड थे। इसके अलावा आपके जो भी सर्विसेज एनेबल्ड हो रही थी वो आपने अगर सिक्योरिटी पैरामीटर्स अगर लगाए होते प्रॉपर्ली तो वो उसको वहीं पर रोक देता। तो ये एक वीडियो दिखाने का मकसद ये था बेसिकली कि हम इतनी बातें करते हैं लेकिन उस पर अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसके लिए फिर देखिए कोई रेगुलेशंस आती है कोई कि जो आपको इन्फोर्स करती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, अगर कोई बैंक्स का हो में या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए जो आपको इंश्योर करती हैं, आपको इन्फोर्स करती है कि आपने ये अपने रेगुलेशंस या पैरामीटर्स आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जैसे हमारे पास जो अगर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपका तमाम आईटी इंफॉर्मेशन गवर्नेंस की बात हो गई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, वो आईटी ऑडिट के बारे में बताते हैं, बिजनेस कंट्री के बारे में बताते हैं। बेसिकली आईटी के लिए तो ये समझ लें कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए और आईटी के लिए ये एक बाइबल है कि आप इसको फॉलो करते हैं, ये आपको लाजमी कंप्लाई करना है। इसके अलावा फिर सिक्योरिटी पैरामीटर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग भी आते हैं, पेमेंट कार्ड ऑफ इंडस्ट्री जो पीसीआई बेसिस से बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा लाजमी, आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज भी आती हैं। इसके अलावा कोई आपके कोई रेगुलेशंस हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक पास नहीं हुआ जो बेसिकली 2019 के अंदर उसका रोड मैप ही आया था, लेकिन मतलब आपका कोई फ्रेमवर्क ऐसा बन के नहीं आया कि आप कह सकेंगे जी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा भी एक पाकिस्तान के अंदर भी डाटा प्राइवेसी लॉ है या कोई रूल है। तो ये रेगुलेशंस आप फॉलो करते हैं। इसके अलावा कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर ISO 27001 पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री है पीसीआई बेसिस से बेसिकली जो आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली वो इंश्योर करता है कि जो वो सिक्योर है, जिसके अंदर आपका डाटा इन रेस्ट, डाटा इन प्रोसेस, डाटा इन ट्रांजिट की बात हो रही होती है। फिर नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया, GDPR हो गया। किसी को पता है GDPR क्या होता है? मेरे एक जस्ट क्वेश्चन है ऑडियंस से, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को GDPR पता है? अगर वो अनम्यूट करके बताना चाहे। यस, वरना चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, वरना माइक अनम्यूट करके प्लीज बता तो आप सकते हैं। चैट बॉक्स में बता दें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। Someone said it's a law in UK. ओके, ये लॉ किस चीज के लिए साहब? डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये जो डाटा और ये हम पे भी इम्प्लीमेंट होता है। मतलब आप खुद सोचिए कि यूके का लॉ पाकिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट होता है।
वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि उनके रूल में है, उनके लॉ में है बेसिकली कि अगर आप हमारे किसी भी सिटीजन का डाटा प्रोसेस या स्टोर करेंगे, और फॉर इंस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब किसी बाहर के बंदे ने आके यहाँ के किसी कह लें आप एचबीएल में अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है ना, तो उसका जो डाटा है बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके एचबीएल के डाटा उसमें आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो वो जीडीपीआर अब आप पे भी अप्लाई होता है। और इन केस अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते, अगर आप फेल हो जाते हैं इन केस उसके जो उसके रेगुलेशंस है उसको फुलफिल करने में, तो उस पर आपको फाइनेंशियल पेनल्टी काफी हैवी पड़ती है। तो ये बेसिकली उस पर देखिए आपने यूए सिटीजन, यूके का लॉ हम पे भी इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा फिर आपके कॉर्बेट के आ गए, सीआईएस बेंचमार्क आ गए, जो बेसिकली तमाम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके सीआईएस आपके कहना चाहिए जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो आपके कंट्रोल्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बताता है कि आपने क्या क्या करना है, जिस तरीके से आप सेफ गार्ड हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग आपने लाजमी सुना होगा कि डे बाय डे जो इंक्रीज भी होता जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपके सेवरल ईयर्स में भी है और इंक्रीज भी होता जा रहा है। अब इस पे इसका काम क्या होता है सॉरी टू बेसिकली कट यू सिंपल टर्म्स में जी श्योर। स्लाइड आईएस फ्रेमवर्क्स एंड रेगुलेशंस की है विद वो क्लाउड पे आगे नहीं, आई थॉट नहीं मैंने आगे निकाल दिए basically। जी यस ओके वी कैन श्योर थैंक यू। अच्छा सो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बेसिकली वो रेफर करता है प्रैक्टिसेस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन इंटरनेट। मतलब फॉर इंस्टेंस कि आप अपने डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स रखें या कोई सर्वर्स रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर रखें, आप क्लाउड बेस पे जाके इंटरनेट पे आके अपना सामान रख दें। इससे आपको बेनिफिट बहुत सारे हैं। फॉर इंस्टेंस एक तो आपकी सबसे पहले बिजनेस की बात करें तो आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, आपको जो एक्सपेंसिव हार्डवेयर हैं या फायरवॉल्स हैं वो खरीदनी नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा फिर आपको स्केलेबिलिटी, आप उसको अपने तरीके से जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्केलेबिलिटी के थ्रू, फ्लेक्सिबल भी है वो। लेकिन साथ साथ आपको पता है क्योंकि चीज़ें कुछ चैलेंजेस भी इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात डाटा सिक्योरिटी, जो आपका डाटा जैसी बात जो हम बात कर रहे थे कि डाटा सेंटर पे अगर आपकी कोई डाटा पड़ा हुआ है कस्टमर का उसको सिक्योर करना है, तो ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो क्लाउड पे डाटा पड़ा है कस्टमर्स का किसी का भी, वो कितना सिक्योर है। उसके लिए आपको कोई पैरामीटर्स आपके वो स्ट्रेंथन है या नहीं, कंट्रोल्स उसके इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। इसके अलावा फिर आपके पास ये आपको मेक श्योर करना चाहिए एक डाटा प्राइवेसी के ऊपर कि वो जो है बेसिकली फॉर एग्जांपल जो जीडीपीआर हो गया, जैसे साथ में बात भी की थी, जीडीपीआर हो गया, हिपा हो गया जो हेल्थ केयर के लिए होता है, ये उनसे कंप्लाइंट करता भी नहीं करता। थर्ड पार्टी रिस्क, जो आपका थर्ड पार्टी जो आपका क्लाउड बेसिकली स्टोर कर रहा है उसके पास ये स्किल सेट है, उसके पास उतने स्टैंडर्ड्स हैं कि वो आपके जो डाटा है वो उसको सिक्योर कर पा रहा है या आपको उसको कंट्रोल को वो स्ट्रेंथन कर पा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके पास जो इंटीग्रेशन इशूज बेसिकली आपके आते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें आपकी क्लाउड पे नहीं जा सकती हैं। ये इंटीग्रेशन के इसमें इश्यूज आ जाते हैं रिगार्डिंग कि किसी की एपीआईज नहीं कर पा रहे होते हम लोग एपीआईज के थ्रू, या किसी के हम लोग कहना चाहिए कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली उससे इंटीग्रेट नहीं हो पा रही होती हैं, तो ये इंटीग्रेशन इश्यूज भी आप फेस कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं कि हम ये तमाम चीज़ों को इंश्योर कैसे करें कि बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर हम अपना डाटा जो है क्लाउड पे भी ले जाएं और सिक्योर इनफ भी हो, और हम इंश्योर रिलायबल भी हो सकें कि हमारा जो डाटा पड़ा हुआ है उधर वो सही भी पड़ा हुआ है और सेफ एंड साउंड भी पड़ा हुआ है। तो ये हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि यूज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एक्सेस कंट्रोल्स, यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड रोल बेस्ड एक्सेस, मतलब कि जो रोल मुझे मिला हुआ है और जो रोल्स के राइट्स मुझे मिले हुए हैं वैसा तो नहीं है कि वही रोल फॉर एग्जांपल XYZ को जो दूसरा रोल मिला हुआ है उसके राइट्स और मेरे राइट्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, सेम हो, तो ऐसा ना हो। तो ये इंश्योर करें कि रोल बेस्ड प्रॉपर आपको रोल मिला हुआ हो। इसके अलावा आप इंश्योर करें कि जी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप लॉगिन कर रहे हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हो या 3-वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हो। इसके अलावा बेसिकली आप ये भी देखें, ये भी रिकमेंड किया जाता है कि एक प्रॉपर सर्विस जो ट्रस्टेड है उनसे आप अपने एग्रीमेंट्स करें। फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया, अमेजोन वेब सर्विस हो गया, AWS हो गया, आपके माइक्रोसॉफ्ट एजूर हो गया, IBM का क्लाउड हो गया, तो आप इनके साथ ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेशन करें। फिर आपका इनक्रिप्ट डाटा, जो आपका डाटा इन ट्रांसलेट पड़ा हुआ है, आप इंश्योर करें वो इंक्रिप्शन के तमाम पैरामीटर्स कवर कर रहा है। इंक्रिप्शन कोई ऐसी तो नहीं क्योंकि वीक इंक्रिप्शन लगा के बैठे हुए वो लोग, फॉर इंस्टेंस कोई जो प्रॉपर इंक्रिप्शन है AAA हो या फिर AES हो वो इंक्रिप्टेड हो। इसके अलावा
आप इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स, फायरवॉल्स इम्प्लीमेंटेड हो, आपकी आईडीपी नेटवर्क सिक्योरिटी पैरामीटर्स कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी मॉनिटरिंग पैरामीटर्स भी इम्प्लीमेंटेड हो। ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई जब आपके पास आपके पास केस अलर्ट आ जाए तो आप उस पर इंसिडेंट करने के लिए आप अलर्ट कर सकें, मतलब उस पर इंसिडेंट पे आप रिस्पॉन्स कर सकें, क्विकली रिस्पॉन्स कर सकें, ताकि आप उस चीज़ को रोक भी सकें। तो रिस्पॉन्स कर सकें, उस चीज़ रोक भी सकें, ताकि वो चीज़ें फिर आपकी रिकर ना हो। अगर इनकेस एक चीज़ रिकर हो चुकी है तो आप उसके लिए फिर रिकर ना कर पाए, मतलब आप उसको फिर आप अपने कंट्रोल्स का स्टैंडर्ड इतना करें कि आप उस चीज़ को फिर आगे जाके मिटिगेटिंग कंट्रोल्स के थ्रू या कंपनसेटिंग कंट्रोल्स के थ्रू आप उस चीज़ को अपने अवॉइड कर सकें फ्यूचर के अंदर। तो ये सब कुछ था मेरी तरफ से। आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई क्वेश्चन हो तो उसमें मुझे बताएं, ताकि हम क्वेश्चन की तरफ चलें। Thank you, Umair. Thank you for such an amazing presentation, engaging and informative session today. Audience से पूछते हैं, if anyone have a question, please drop down in the chat box. We have I guess we have 3 minutes left. So if anyone have a question, please drop in the chat box. Well, how fast का है कि how often IT audit should be performed? Well, it depends how many critical infrastructure, how much critical infrastructure you have. For instance, if you are working in a banking industry or you in a banking industry, then regular based audits or risk based audits you have to perform. In the risk based audit, you need to firstly you need to identify what are the critical aspects or critical infrastructure in your industry, in your organization. So then you have to perform regular based audits to ensure that they are being overlooked and being reliable as well. कुछ क्वेश्चंस हैं जो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आए थे हमारे पास, लाइक मिर्जा, मिस्टर मिर्जा का मैसेज क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑडिट्स? आई गेस यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. Yeah. Yes. What's a great in IT audit phase in terms of the career? Well, honestly speaking, there's a huge growth in the rate of IT audit. Basically, इसके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट आपका ये होता है कि आप एज ए इंडिपेंडेंस काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट उस पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप और आईटी की चीजें निकाल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो सीआईओ है आपका, आप उसको रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप एक इंडिपेंडेंट फील्ड के तौर पे काम कर रहे होते हैं। आप इंडिपेंडेंट तो एक आपको एक आप बता सकते हैं उसके अंदर जो भी आपके रिस्क हैं, जो भी आपके रिकमेंडेशंस हैं, वो एक प्रॉपर फिर उसको आगे सुना भी जा रहा होता है। और ऑडिट को ये चीज़ की इंश्योरिटी होती है कि कि आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी हो रही हैं। कैन आई लर्न ऑडिटिंग इन अ मंथ? वेल, इट डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस किस तरफ जा रहा है। मतलब फॉर इंस्टेंस कि आप ऑडिटिंग में अगर आ गए तो आप किस तरीके से ऑडिटिंग कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कि आप सिर्फ पॉलिसीज प्रोसीजर्स पढ़ के ऑडिटिंग कर रहे हैं, या फिर उनके जो कंट्रोल्स हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं, उनको वैल्यूएट कर रहे हैं। क्योंकि ये भी आपके लिए भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि आप जब नई नई टेक्नोलॉजीज से इन्वॉल्व होते हैं, सीखते हैं, फिर आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो नॉलेज होती है उसके अंदर ग्रास्प करते हैं, तो फिर आपके एक वन गुड प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो आई विल नॉट से कि आप एक मंथ में ऑडिटिंग सीख जाएंगे। हाँ, बस ये है कि आपको, अगर आपको ऐसा चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दिया कि आपने ये फलां चीजें टेस्ट करनी है, तो बस वो आप कर सकते हैं। वेल, रोड मैप, वेल इसकी सर्टिफिकेशंस काफ़ी होती हैं। आपको सीसा करना होता है, सीजम करना होता है, इसके अलावा ISO 27001 जो मैंने बात भी की, उसकी सर्टिफिकेशंस आती हैं। तो जो आपको इंश्योर करता है कि आप इस एलिजिबल हैं या इस कैपेबल हैं कि आप एक IT ऑडिटर इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेरा भी क्वेश्चन था, लाइक हमारे पास कोई बैंकिंग सेक्टर में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हम अपना पर्सनल आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन या कार्ड डेटा जो है वो क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं? लाइक इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं या फ्री बिल्कुल है। टू? वेल, जो स्टेट बैंक की आपकी जो बेसिकली आपने बात की बैंकिंग की, तो स्टेट बैंक ने आपको ये इंश्योर मतलब रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप अपना कोई भी कोर डाटा, को क्रिटिकल एंड कोर डाटा आप अपने क्लाउड पे लेके नहीं जा सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन उनकी तरफ से। Well, it depends upon the dollar. For instance, one like अभी जो पाकिस्तानी सीसा की मैं बात कर रहा हूँ, वो लाइक 2 लाख रुपए तक का है, 2 लाख रुपीज का। Okay, the question was और what's आपकी the total cost of all certification? uh, इसका आपने आंसर दिया, राइट?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आईएसओ की भी जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है लाइक 60,000 70,000 डिपेंड्स ऑन द कि आप कहाँ से कर रहे हैं। key areas of IT should be strong. Well, key areas should be strong where आपके आपके जो IT skills हैं वो आपकी strong होनी चाहिए। आपको पता हो कि firewalls का काम क्या है, आपको पता हो कि routers क्या करते हैं, databases के अंदर जो बेसिकली उसके database के अंदर अगर डाटा पड़ा हुआ है तो उसको आपने कैसे वैलिडेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम हो रहा है, एप्लीकेशन को टेस्ट करना, उसके कंट्रोल्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस कंट्रोल्स हैं उनकी चीज़ों को आपको उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो ये कि आप सक्सेसफुल IT ऑडिटर बन सकते हैं। Okay, Umair, thanks. It was a wonderful session. We have a less than 1 minute remaining. So I guess we should wind up this session. And I hope our audience find this very useful. And yeah, that's pretty much from this webinar, I guess. Thank you so much. So nice of you. It Thank you was a so much. wonderful meeting. Thank you. Thank you so Bye much. bye. So nice of you. Allah Hafiz.